Okay, let us start the lecture. The topic so today we are going to start a semi-group amalgam. तो जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था वहाँ पर शायद मैंने थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस किया था एमएलगम को. अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देंगे. सेमी ग्रुप एमएलगम की डेफिनेशन सबसे पहले. सेमी ग्रुप okay, semi group amalgam. A semi group amalgam which we denote by cursive A. It's the following list actually in square brackets. First we have a semi group U, then we have a family of semi groups Si where I is in the index set I, and then we have morphisms. This family of morphisms phi I in the index set I. A semi-group amalgam is this list, okay? So in which this U consists of a semi-group U, जिसमें पहला जो semi-group है वो U है, consists of a semi-group U, which we called the core of the amalgam, okay? Called the core of the amalgam. Core of the amalgam. And the second is the family of semigroups. A family. It's a disjoint family of semigroups actually. A family Si, I in the index set I, of semigroups disjoint from each other, of semigroups disjoint from each other, and also they are disjoint from U and from U and from U, and a family of monomorphisms and a family of monomorphisms. And a family of monomorphisms phi I from U to Si. So these phi i's, they are actually monomorphisms from U to Si. I in the index set I. So we shall use the notation. हम इस notation को थोड़ा सा simplify करेंगे ना, जो हमने ऊपर notation use की है amalgam की है. A semi group amalgam is this. So in which we have a semi group U, which we call the core of the amalgam A, and then we have a family of semi groups, and this family is a disjoint family, and they are also disjoint from U. And finally this we have family phi I. This family phi I, they are the monomorphisms from U to Si. तो इस notation को थोड़ा सा simplify करेंगे. We shall simply use the notation. We shall simply use the notation. We shall use the notation. We shall use the notation this for amalgam.
A, we use this notation. U, then Si and phi I in square brackets. ये नोटेशन हम यूज करेंगे. So instead of this above notation, जहाँ पर आपने अंदर सेट ब्रैकेट्स यूज़ किए थे ना एस आई और फाई आई के लिए, वो हम नहीं करेंगे. ओके, हम सिंपली इस नोटेशन को यूज़ करेंगे, यू एस आई फाई आई. Next, this is the definition of semigroup amalgam. Okay, so in semigroup amalgam we have a semigroup U that we call the core of the amalgam, and we have a family of semigroups Si. This family is disjoint, and each Si is also disjoint from U. And we have also a family of morphisms, monomorphisms phi I from U to Si. So this is called the semigroup amalgam. अब ये embed कब होगा किसी semigroup में? That's the next definition. When we say that this semigroup amalgam is embedded in a semigroup T, in some semigroup T. Actually, we are in the category of semigroups. So the amalgam A which is consisting of U, Si and phi I is said to be embedded, is said to be embedded in a semigroup T, in a semigroup T is said to be embedded in a semigroup T if there exists a monomorphism, if there exists a monomorphism lambda from U to T. And for each I in I, and for each I in I, there exists a monomorphism. So a monomorphism हर किसी आई के लिए मोनोमॉर्फिज्म मिलनी चाहिए आपको, है हर किसी आई के लिए. मोनोमॉर्फिज्म लैम्डा आई from S to T, such that अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए. ये मोनोमॉर्फिज्म्स तो एक्स होनी चाहिए. फाई तो ऑलरेडी आपके पास है, मॉर्फिज्म फ्रॉम यू टू एस आई. अब एस आई से टी तक मोनोमॉर्फिज्म मिलनी चाहिए लैम्डा आई, और यू से लेकर टी तक भी आपके पास मोनोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, दैट यू हैव डिनोटेड बाय लैम्डा. अब प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए. फर्स्ट प्रॉपर्टी, so this is actually square diagram. Phi I lambda I is equal to lambda for all I, and second part is the following: Si lambda I, image of Si under lambda I, intersection image of Sj under lambda j. Lambda j is a map from Sg to T. Okay, this intersection should be equal to the image of U under lambda, because U is a map from lambda is a map from U to T. Okay, this is the second requirement for all I j in I, with I not equal to j, obviously with I not equal to j. अब इसी को आप डायग्राम की फॉर्म में लिख सकते हो. आपके पास एक स्क्वायर डायग्राम आपके पास एक्चुअली आ जाएगी. ये U है,
यू से लेकर एस आई तक जो मॉर्फिज्म्स है, मोनोमॉर्फिज्म्स है, वो है फाई आई। ओके, फाई आई लैम्डा आई, तो यहाँ से फिर नीचे जो है ना लैम्डा आई है, एस आई से लेकर टी तक, दे आर लैम्डा आई। दिस कंपोजिशन फाई आई लैम्डा आई, दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा फ्रॉम यू टू टी, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा के बराबर। ओके, लैम्डा। यहाँ से भी आप, इट्स ट्रू फॉर ईच आई, तो अगर मैं यहाँ से अब स्टार्ट करूँगा, सो लेट्स टेक हियर एस जे, देन दिस शुड बी हियर फाई जे, फ्रॉम यू टू एस जे, देन फ्रॉम एस जे टू टी वी हैव लैम्डा जे, लैम्डा जे। तो ये स्क्वायर डायग्राम आपको मिलना चाहिए, दिस स्क्वायर डायग्राम शुड कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या है, फाई आई लैम्डा आई शुड बी सेम एज फाई जे लैम्डा जे, वो तो है क्योंकि वो डेफिनेशन में आपके पास है, फाई आई लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा फॉर ईच आई, सो दैट मीन्स फाई आई लैम्डा आई इज इक्वल टू लैम्डा, फाई जे लैम्डा जे इट्स आल्सो इक्वल टू लैम्डा, ये भी लैम्डा के बराबर। सो इन अदर वर्ड्स इट मीन्स दैट फाई आई लैम्डा आई इज इक्वल टू फाई जे लैम्डा जे। तो यहाँ से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो, फाई आई लैम्डा आई जो है दैट्स इक्वल टू फाई जे लैम्डा जे फॉर ऑल आई एंड जे इन आई। और दोनों किसके बराबर है, बोथ आर इक्वल टू लैम्डा, और वो भी लिखना चाहोगे, दिस दे आर बोथ आर इक्वल टू लैम्डा। तो हम एमलगम को कहेंगे तभी ये एम्बेड होगा किसी सेमी ग्रुप टी में, अगर आपके पास इस तरह की मोनोमॉर्फिज्म मिल जाए, लैम्डा और लैम्डा जिनकी ये दो प्रॉपर्टीज हो। ओके, तो हमने कहा था कि जो है ना मोनाइड के केस में हम फ्री प्रोडक्ट को वैसे डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटीज डिफरेंट है। तो मोनाइड के केस में हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम पहले फ्री प्रोडक्ट लेते हैं सेमी ग्रुप्स का ही, एफ को फिर फैक्टर करते हैं किसी कॉन्ग्रेनस से, सो वहाँ से जो आपके पास नया सेमी ग्रुप मिल जाएगा, दैट सेमी ग्रुप इज द मोनाइड फ्री प्रोडक्ट। तो मोनाइड फ्री प्रोडक्ट इज एक्चुअली द एमलगमेटेड, तो एमलगम का फ्री प्रोडक्ट है, उसको हम कहते हैं एमलगमेटेड फ्री प्रोडक्ट। सो द फ्री प्रोडक्ट, अब नेक्स्ट वी डिफाइन द फ्री प्रोडक्ट ऑफ द एमलगम, नॉट द फ्री प्रोडक्ट ऑफ द फैमिली ऑफ सेमी ग्रुप्स। इसको क्लियर कीजिए आप। एक तो आपके पास है फ्री प्रोडक्ट ऑफ सेमी ग्रुप, जो गिवन डिस्जॉइंट फैमिली होती है सेमी ग्रुप्स की, उसका फ्री प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं, वो हमने ऑलरेडी किया है कल के लेक्चर में, उसको हमने डिटेल में किया है। अब हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे फ्री प्रोडक्ट किसका, एमलगम का, और उसको हम कहते हैं एमलगमेटेड फ्री प्रोडक्ट। ओके, सो द फ्री प्रोडक्ट which we denoted by product star sub u, तो वहाँ पर जब फ्री प्रोडक्ट हमने सेमी ग्रुप्स का डिफाइन किया था, वहाँ पर सिर्फ हमने स्टार नोटेशन यूज़ की थी प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर मैं सब यू भी लिखूंगा बिकॉज वी आर नाउ डीलिंग विद द फ्री प्रोडक्ट ऑफ एमलगम। ओके, सो एस आई of the amalgam A of the amalgam A is defined as a quotient, as a quotient सेमी ग्रुप। ये क्या होता है, ये फ्री प्रोडक्ट क्या है, दिस फ्री प्रोडक्ट एक्चुअली कोशेंट सेमी ग्रुप इज डिफाइंड एज ए कोशेंट सेमी ग्रुप। ओके, ये कोशेंट सेमी, कौन सा कोशेंट सेमी ग्रुप, इज डिफाइंड एज ए कोशेंट सेमी ग्रुप। ओके, ऑफ द ऑर्डिनरी फ्री प्रोडक्ट, ऑफ द कोशेंट सेमी ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी फ्री प्रोडक्ट, ऑफ द ऑर्डिनरी मतलब जो आपने ऑलरेडी फ्री प्रोडक्ट डिफाइन किया है, ऑफ द ऑर्डिनरी फ्री प्रोडक्ट this
दिस इज द ऑर्डिनरी फ्री प्रोडक्ट. ओके, इसका कोशेंट मतलब इसको हमने फैक्टर करना है किसी कॉन्ग्रेंस से, तब जाके मुझे इसका कोशेंट मिल जाएगा. और वो जो कोशेंट होगा दैट्स दिस एक्चुअली जो आपने ऊपर लिखा है एमलगमेटेड फ्री प्रोडक्ट इज कोशेंट ऑफ दिस सेमी ग्रुप इन विच. इस कोशेंट में क्या है, अब मतलब आप एक्चुअली ये नहीं ले रहे, आप इसका कोशेंट ले रहे हो. ओके, यू आर नाउ इन कोशेंट, एक्चुअली यू आर टेकिंग द कोशेंट ऑफ दिस फ्री प्रोडक्ट. सो उस कोशेंट में क्या है, इन विच. तो कोशेंट कब आपको मिल जाएगा, कोशेंट तो तभी आपको मिल जाएगा ना, जैसे मैं लूंगा एस का कोशेंट. मैं एस का कोशेंट कैसे डिफाइन करता हूँ, मैं पहले एस पर कॉन्ग्रेंस डिफाइन करता हूँ. ओके, देन आई विल डिफाइन द एस ओवर रो. अगर रो कॉन्ग्रेंस है एस ओवर रो, उसी को हम कहते हैं कोशेंट सेमी ग्रुप, कोशेंट ऑफ एस बाई रो. तो इसी तरह से ये भी एक सेमी ग्रुप है आपके पास, फ्री प्रोडक्ट है, ये ऑर्डिनरी फ्री प्रोडक्ट है जो आपने कल डिफाइन किया था. इसका मुझे कोशेंट लेना, इसका मतलब है कि मुझे इस पर अब कॉन्ग्रेंस डिफाइन करनी है. ओके, फिर इस फ्री प्रोडक्ट को फैक्टर करना है उस कॉन्ग्रेंस से, आपको कोशेंट सेमी ग्रुप मिल जाएगा. अब वो कॉन्ग्रेंस क्या होनी चाहिए, तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पर आई थी मोनोड के केस में, आइडेंटिटीज प्रॉब्लम कर रही थी. तो वो आइडेंटिटीज को एक्चुअली आइडेंटिफाई करना है, मतलब हमें अब उस स्ट्रक्चर में जाना है जहां पर आइडेंटिटीज सेम हो, जहां पर आइडेंटिटीज आइडेंटिफाई हो जाए, मतलब वो सेम बन जाए. तो इसलिए मैं फैक्टर करूंगा. जैसे अगर आप देखिए मैं कहने का मतलब क्या है, सपोज आपके पास सेट नेचुरल नंबर्स है. ओके, यू हैव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप इस पर डिफाइन रिलेशन करोगे रो. वी से दिस n is row related to m if and only if n minus m is even integer. ओके, even integer. तो उस केस में 2 4 6 है ना, ये सारी आइडेंटिफाई हो जाएगी. अब अगर मैं n ओवर रो लूंगा ना, n ओवर रो में 2 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू, ये सारी इक्वल है, मतलब आइडेंटिफाई हो रही है कोशेंट में, कोशेंट में इक्वल है, n में इक्वल नहीं है, दे आर इक्वल इन कोशेंट. तो वही मैं यहां पर कह रहा हूं कि अब मैं इसका कोशेंट मुझे लेना है और उस कोशेंट में वो सारी आइडेंटिटीज सेम होगी. ओके, वो सारी आइडेंटिटीज क्या होगी, सेम. तो वो कोशेंट क्या होगा, वो कॉन्ग्रेंस क्या होगी जिसमें ये आइडेंटिटीज सेम होगी. सो इन विच फॉर ईच आई एंड जे, इन विच for each I and j, they are in the index set I. In the index set I, the image u phi I of an element u की image of an element u इन SI, इसकी इमेज SI में होगी. ओके, इस आइडेंटिफाइड, इस इमेज को हम आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, तो इन पर्टिकुलर तो आइडेंटिटी भी आइडेंटिफाई होगी. अगर आप आइडेंटिटी लोगे ना U में, वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगी. इस SI में जो आइडेंटिटीज होगी, ओके, SI में वो आइडेंटिफाई हो जाएगी. सो इन विच द इमेज u phi ऑफ एन एलिमेंट u इन SI इज, this element, this image is identified with its image इस इमेज के साथ u phi j in S G. ओके, अब देखिए आइडेंटिटीज कैसे अब आइडेंटिफाई हो जाएगी इस रिलेशन से. इस रिलेशन से कैसे आप कहोगे कि जो आइडेंटिटीज है एस आई की, क्योंकि S1 S ये जो सेमी ग्रुप्स है ये दे आर डिफरेंट एक्चुअली, आइडेंटिटीज सेम नहीं होगी, इनकी आइडेंटिटीज आर डिफरेंट. तो सपोज S1 की आइडेंटिटी है से इट्स से सपोज 1 1, S2 की है 1 2, S3 की है 1 3, तो दे हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज. अब हमने क्या किया, अब U इनका सब मोनाइड है, अगर आप मोनाइड में होगे तो U की भी अपनी आइडेंटिटी होगी. तो
फाइव आइज दे आर मोनोमॉर्फिज्म्स, तो आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी होगी, तो वन की इमेज 151 होगी। अगर आप वन लोगे, वन की इमेज होगी 151, ओके। अब अगर मैप 51 लोगे आप, इसी तरह से अगर मैप 52 लोगे तो वन की इमेज 152 होगी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी होगी 11 सपोज, यहाँ पर डिफरेंट आइडेंटिटी होगी, से E1 में लूँगा, ओके। और यहाँ पर आइडेंटिटी होगी E2 इसकी इमेज, क्योंकि इसकी इमेज S2 में होगी। और इन्हीं को एक्चुअली हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब हम रिलेशन, हम कॉन्ग्रुएंस उस रिलेशन से जनरेट करेंगे जहाँ पर ये एटलीस्ट इक्वल होगी, जहाँ पर ये दो आइडेंटिटीज, ये सारी आइडेंटिटीज इक्वल होगी। इन पर्टिकुलर U की सारी इमेजेस इक्वल होगी। So in which we identify these images actually, U phi and U phi j, images of U under phi I and phi j, we identify those images. So वो रिलेशन क्या होगी, वो रिलेशन हम कैसे आप डिफाइन करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपने थीटा आई ऑलरेडी लिया था मोनोमॉर्फिज्म्स, so we denote by theta I जो हमने कल किया था, द नेचुरल मोनोमॉर्फिज्म, द नेचुरल monomorphism, it's a monomorphism from SI into the free product, ordinary free product जो हमने कल डिफाइन किया था, into this free product SI। तो नेचुरल मोनोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, इमेज ऑफ SI अंडर दिस थीटा I, they are the words, they are single letter words, okay, words of length 1 जो हमने कल किया था। so theta I ये मोनोमॉर्फिज्म से, theta I क्या है, theta I that is we have this theta SI of theta I is a single letter word, okay, this is in product SI which you have denoted by F actually। तो ये है मोनोमॉर्फिज्म, नेचुरल मोनोमॉर्फिज्म थीटा आई। नाउ वी डिफाइन द कोशेंट सिंबल, now we define P, which is the quotient of this ordinary free product SI star, product star SI over rho, where this rho is the congruence generated by, this row is congruence, it is generated by the relation rho, it's obviously a congruence on this product, okay, so it's a relation generated by the relation which that relation is on this product SI, okay। so that relation is we denote by that relation by R। वो रिलेशन क्या, इसमें किस टाइप की पेयर्स है, सो इट कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, U phi I theta I, U phi j theta j, U is in U के एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो अंडर दिस रिलेशन U phi I theta I is same as U phi j, मतलब कोशेंट में ये दो इक्वल है, एक्चुअली कोशेंट में ये इक्वल है, कोशेंट में इनकी क्लासेस है, कोशेंट एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ द क्लासेस, तो इनका इसका रो क्लास और इसका रो क्लास दे आर सेम, both are same। so defined it is generated by the relation, this relation is on the product SI star, okay।
So this gives in particular, this gives u phi I theta I, the rho class of this is same as u phi j theta j of rho for all I j in I. क्वोशंट सेमी ग्रुप में ये सेम, ओके, क्वोशंट्स में ये सेम है. Okay, so next we do the following proposition. If this is semigroup amalgam, okay, it's square bracket, okay, it's square bracket, it's a square bracket. U S I phi I. If this is a semigroup amalgam, is a semigroup amalgam, then the free product जो हमने अभी डिफाइन किया, then the free product P, which is the quotient of the ordinary free product by rho relation, and that has this notation जो हमने already discuss किया है. This free product has this the amalgamated free product, it has this notation, okay, sub u. This free product is the push out, push out of the diagram. This is the push out of the diagram, and the diagram is there the mapping is from U to SI. That's our diagram. Is a push out of the diagram. This is the diagram. अब मैं इनको सेट ब्रैकेट्स में इनको डिनोट किया डायग्राम को, वो हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे. दिस इज आवर डायग्राम, ओके. दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज पुश आउट का मतलब क्या है, ये पुश आउट है इस डायग्राम को, ओके. तो आपके पास एक्चुअली डायग्राम तो आपके पास ये है गिवन, तो U से लेकर SI तक मैप्स है और U से लेकर SJ तक मैप्स है. सो दे आर phi I, दिस इज phi j, ओके. अब इसका पुश आउट क्या होगा, P, मैं कहूँगा P इसका पुश आउट है, तो यहाँ से यहाँ तक मैप मुझे मिलनी चाहिए, मोनोमॉर्फिज्म, ओके. तो वो हम मैं नीचे लिख दूँगा. इसका मतलब, इस पुश आउट का मतलब क्या है. There exists for each I in I, for first property, that's for each I in I, for each I in I, for each I in I, there exists a monomorphism. There exists a monomorphism mu I from SI to P such that the diagram commutes, such that the
डायग्राम ये आपके पास है, यू से लेकर एस आई तक, एस आई से लेकर पी तक मैप्स है, और ये तो ट्यून आपके पास है एमलगम में, और ये एग्जिस्ट हो रही है म्यू आई, सच दैट दिस डायग्राम commutes का मतलब क्या है, that is phi I mu I is same as phi j mu j for all I j in I। तो ये एक्चुअली इस तरह का डायग्राम आपके पास है, u से लेकर एस आई तक आप मैप ले रहे हो, देन u से लेकर एस जे तक, वो मैपिंग्स क्या है, वो है फाई आई है ना, फाई आई इज आर मैपिंग्स, जो आपके पास एमएलगम में जो मैपिंग्स आपके पास है फाई जी। और पुश आउट ये डायग्राम कम्यूट हो रही, आपके पास पी तक मैपिंग्स मिलनी चाहिए, म्यू आई म्यू जी। So this square diagram commutes means that phi I mu I is same as phi j। तो इसने इसमें ये नोटेशन यूज़ की है डायग्राम की, ये एक्चुअली स्क्वायर डायग्राम है, ठीक है। phi I from u to si, then mu I from si to p, for each I, हर किसी I के लिए ना आपके पास ये मैपिंग्स मिल जाएगी। तो अगर आप ऐसा यहाँ पर लिखोगे, सो दिस u, अगर आप ऐसा यहाँ पर लिखोगे, so we have a map phi I from u to si, इसके बाद आप sj नीचे लिखोगे, then you have a map from u to sj which is phi j। और आगे p इसका पुश आउट है, तो p पुश आउट होने का मतलब क्या है, आपके पास si से लेकर p तक मैपिंग्स मिलनी चाहिए, से म्यू i, और sj से लेकर p तक मैपिंग मिलनी चाहिए म्यू j, हर किसी i के लिए, तो i j के लिए भी। सो दिस स्क्वायर शुड कम्यूट, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि p के लिए ये स्क्वायर कम्यूट होना चाहिए, और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी और के लिए ये इस तरह का स्क्वायर एग्जिस्ट होगा, किसी और के लिए ये स्क्वायर डायग्राम कम्यूट होगा, फिर p से लेकर उस सेमी ग्रुप तक आपके पास कोई मॉर्फिज्म मिलनी चाहिए, जो आपने आगे भी पहले भी डिस्कस किया है। मतलब ये एक्चुअली यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है p की, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए p की, तब जाके हम p को कहेंगे ये पुश आउट है, पुश आउट की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी और के पास इस तरह का स्क्वायर डायग्राम आपको मिल जाएगा किसी और सेमी ग्रुप के लिए, देन देयर शुड बी अ मॉर्फिज्म फ्रॉम दिस p व्हिच यू कॉल द पुश आउट टू दैट सेमी ग्रुप। सो वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, सेकंड प्रॉपर्टी, इफ Q इज अ सेमी ग्रुप, मतलब p की जगह पर अब Q के पास ये सपोज प्रॉपर्टी है, इफ Q इज अ सेमी ग्रुप, इफ Q is a semigroup for which morphism आपने वहाँ मॉर्फिज्म लिखा कि मोनोमॉर्फिज्म, कि इट्स अ मॉर्फिज्म हियर, it's not a monomorphism, sorry, it's just a morphism। So morphism आपको, not monomorphism। Okay, so if Q is a semigroup for which morphisms nu I they exist from Si to Q such that they exist such that the square diagram commute, okay, such that phi I nu I is same as phi j nu j for all I j, then there should exist, then there exists, then there exists a unique morphism, a unique morphism delta from P to Q
such that the diagram commute, such that the diagram, this is the diagram, this should commute. अगर कोई और स्क्वायर डायग्राम मिल जाए आपके पास तो ये डायग्राम फिर कम्यूट होना चाहिए. तो आपके पास डेल्टा मिलना चाहिए P से लेकर Q तक, so that this diagram commute. तो SI से लेकर P तक कौन सी मैपिंग्स है? They are mu i's. और SI से लेकर Q तक है nu i. This is delta. तो ये स्क्वायर डायग्राम अगर आपके पास हो, अब आपके पास ये स्क्वायर डायग्राम अब किसके लिए होगा? दिस स्क्वायर डायग्राम इज फॉर नाउ Q. अगर Q के लिए ये स्क्वायर डायग्राम एग्जिस्ट हो, अगर इस स्क्वायर डायग्राम Q के लिए एग्जिस्ट हो, सो ये आपके पास गिवन मैपिंग्स है phi I, they are nu I, this is phi j, this is nu j. तो ये डायग्राम अगर कम्यूट हो, वही मैंने ऊपर, if Q is a semigroup for which there is morphism Qi for each I, such that this square diagram commutes, means phi I nu I is equal to phi j nu j, then there should exist delta from Q, from this Q to P, such that this triangle commutes. अब इस इन दोनों जो आपने दो कंडीशन लिखी ना, जो आपको प्रूव करनी है P के लिए, इसको मैं एक ही डायग्राम में लिख सकता हूँ. तो एक्चुअली आपको ये प्रूव करना है. अगर हम इसको एक ही डायग्राम में लिखना चाहिए, इट्स लाइक दिस. पहले आपके पास ये होना चाहिए. फर्स्ट यू शुड हैव दिस. ये तो है ही आपके पास, दिस वन, क्योंकि एमलगम आपके पास है. एमलगम में ये मॉर्फिज्म्स है, ये सेमीग्रुप्स भी है. अब P के लिए क्या होना चाहिए? P के लिए कोई मॉर्फिज्म एक्स्ट होनी चाहिए mu I. दैट शुड कम्यूट दिस डायग्राम. और अगर और किसी Q के लिए ऐसी प्रॉपर्टी हो, और किसी Q के लिए इस तरह की, ये Q के लिए, Q दिस इज nu I and this one is nu j. मतलब अब स्क्वायर यहाँ से है phi I nu I, ओके, phi j nu j, ये आपके पास स्क्वायर. देन देयर शुड एग्जिस्ट डेल्टा फ्रॉम P to Q. तो ये सारा जो है ना, ये डायग्राम कम्यूट होना चाहिए. अगर ये सारा डायग्राम कम्यूट होगा ना, उस केस में इस P को हम कहेंगे ये पुश आउट है, इस स्क्वायर का ये पुश आउट, फर्स्ट स्क्वायर. तो दोनों चीज़ों को मैंने बस इस डायग्राम में लिख दिया. जो आपने भी लिखा ना, फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज P की होनी चाहिए, तो वो मैंने इस डायग्राम में लिख दिया. mu I एक्स्ट होना चाहिए SI से लेकर P तक, सो दैट दिस स्क्वायर कम्यूट्स. अगर Q के लिए ऐसा स्क्वायर एक्स्ट होगा, सो दैट phi I nu I is equal to phi j nu j, then there should exist delta from P to Q, so that this triangle now commute. Proof. तो सबसे पहले हम mu I डिफाइन करें, क्योंकि mu I there should be morphism mu I. Okay, we know that this we know that this rho natural, these are the morphisms from F to F over rho, they are surject morphisms, or surjective morphism. So this is surjective morphism. Okay, this is a row natural. It maps each element of F to its class. Okay, row class जो आपने अभी डिफाइन किया है, रो को जो ना ऊपर आपने डिफाइन किया था रो को,
एफ और रो भी आपने डिफाइन किया है, एफ भी, एफ तो फ्री प्रोडक्ट है, ऑर्डिनरी फ्री प्रोडक्ट है, एफ और रो है एमएलगम फ्री प्रोडक्ट। तो ये मैप एटलीस्ट आपके पास है विच मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ एफ टू इट्स रो क्लास। ओके, मुझे म्यू आई डिफाइन करना, म्यू आई कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, एस आई से लेकर पी तक। नाउ लेट्स डिफाइन म्यू आई फ्रॉम एस आई टू पी। व्हाट्स पी? पी इज एक्चुअली एफ और रो बाय म्यू आई इज इक्वल टू, अब सबसे पहले एस आई से लेकर एफ तक कौन सी मैपिंग्स है, एस आई से लेकर एफ तक थीटा है आपके पास है, नेचुरल मॉर्फ जो आपने अभी नीचे डिस्कस किया था ऊपर, थीटा है। और उसके बाद एफ से लेकर एफ और रो तक आपके पास मैपिंग्स है रो नेचुरल। तो इनका कंपोजिशन आप लीजिए, इनका कंपोजिशन थीटा आई, दे आर द मैपिंग्स फ्रॉम y to y, they are mappings from S to F, okay, which maps each element of Si to single letter, good। और उसके बाद रो नेचुरल है, they are mappings from रो नेचुरल is a map from S F to F over रो, that's your P। तो इनका कंपोजिशन मैं लूँगा, it's a map from Si to P, Si to P। So clearly this mu I is a morphism because theta I is morphism, ro natural is morphism। So clearly mu I is a morphism, for all I in I, हर किसी I के लिए। So mu I is morphism from Si to P। अब आपको नेक्स्ट क्या वेरीफाई करना है, phi I mu I is equal to phi j mu j। Now next we verify that phi I mu I is equal to phi j, that means square diagram commute, okay, it's for all ij in I। okay, so let's see this। so theta, it's a map from Si, okay, Si to F। so let S belongs to Si, okay, let's take Si, then Si of theta I, okay, आपको चेक करना है ये डायग्राम, let's see this, it's phi I, not theta I here, it's phi I, it's phi I। it is phi I mu I is equal to phi j mu j, and phi I is a map from Si to, it's a map from U to Si, sorry, it's a map from U to Si, it's a map from U to Si। so आपको U में एलिमेंट लेना है, नॉट इन Si। let U belongs to U, then U of phi I, then phi I mu I, okay, what's the U of phi I, okay, so let's see first this, it's phi I, what's mu I, mu I is what's this mu I, it's theta I rho natural, theta I rho natural, okay, this is equal to U phi I of theta I, okay, then rho natural। but by our definition है, जो आपकी definition है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले रो नेचुरल अप्लाई करोगे, रो नेचुरल जब आप इस पर अप्लाई करोगी, रो नेचुरल it's a map from
आपके पास है फाई आई थीटा आई, फाई आई, सॉरी, let's do it like this. So this is okay, this is u phi I theta I, u phi I theta I, then rho nature. But u phi I theta I is same as u phi j theta j, or you can say first you apply rho natural, then you can write this. It's actually the rho class of this element now, because you are applying rho natural on this element. It's u phi I theta I, the rho class of this element. Okay, but this rho is generated by the relation in which u phi I theta I is equal to u phi j theta j, जो आपने पहले डिफाइन किया है. दिस इज सेम एज द रो क्लास, इनके सेम कोशेंट में ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, क्योंकि रो रिलेशन आर से जनरेट हो रही है, और आर रिलेशन में एक्चुअली ये दो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है. u phi I theta I is related to u phi j theta j, so it is u phi j theta j of rho. अगर आप इसमें रीजन लिखना चाहोगे, बिकॉज द पेयर u phi I theta I u phi j theta j, this pair belongs to R and R is contained in rho, because rho is generated by R. सो दैट मीन्स जो इनके रो क्लास होगी ये एक्चुअली रो रिलेटेड है, तो इनके रो क्लासेस सेम होगी, इनके रो क्लासेस. और इसको जब आप वापस एक्सपेंड करोगे ना, इस फॉर्म में लाओगे आप, क्योंकि आपको एक्चुअली फाइनली चाहिए u phi j mu j, इट्स इक्वल टू u phi j mu j. So u phi I mu I is equal to u phi j mu j for all u in u, for all u in u. So therefore phi I mu I is same as phi j mu j. So thus we have a following commutative square. Thus we have a following commutative square, or you can see diagrams. ये आपको मिल गया. u यहाँ पर है, it's phi I, it's here sj, it's here si, then this one is phi j, then we have p, this is mu j, this one is mu I. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको मिल गई. देयर इज अ मॉर्फिज्म mu I फ्रॉम si to p such that this diagram commutes. अब आपको सेकंड प्रॉपर्टी चाहिए, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आपको देखनी है. तो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए आपको ऑब्वियसली आपको लेना है कोई सेमी ग्रुप Q, जिसके लिए ये डायग्राम कम्यूट हो रहा है. ओके, let Q be a semigroup, and for each I and I, let nu I from where to where, from Si to Q be a morphism such that the diagram is this: u to si, say phi I, then this one is sj phi j, it's q here, and we have nu I nu j, such that this diagram commutes. ये डायग्राम कम्यूट हो रहा है इसमें.
अब जो आपने ऑर्डिनरी फ्री प्रोडक्ट डिफाइन किया है, वहाँ पर आपने कहा था कि एस आई से लेकर उस फ्री प्रोडक्ट तक मॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म एक्सिस्ट हो रही है, और अगर कोई और सेमी ग्रुप होगा Q such that there is a morphism from Si to that semi group Q, then there should exist a unique morphism delta from the free product, ordinary free product to Q, such that the triangle commutes. So by property of F, the ordinary free product, by property of F, the ordinary free product, ordinary free product, by the property of F, the ordinary free product, okay, there exists a unique morphism delta from F to Q. There exists a unique morphism that we denote by this gamma from F to Q, such that the diagram commutes. So what's the diagram? It is S to F. तो ऑलरेडी आपके पास मैपिंग्स है जो आपने थीटा आई ली है, और यहाँ से आप कह रहे हो कि आपके पास ये मैपिंग्स आपके पास आ रही है एस आई से लेकर क्यू तक, जो कि आपने न्यू आई या गामा आई से डिनोट की है, तो आपको ये न्यू मिल रहा है एफ से लेकर क्यू तक, विच कम्यूट्स दिस डायग्राम। ये हमने कल किया था फ्री प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, एफ की प्रॉपर्टी से। But we want a morphism from P to Q, है? हमें P to Q morphism चाहिए actually, P to Q. So next we verify that this gamma composition gamma inverse जो है ना, ये congruence तो है ही, ये will show that rho is subset of gamma composition gamma inverse. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये प्रूव R is subset of gamma composition gamma inverse. So for any U belongs to U, we have this image U theta I, U phi I, sorry, U phi I theta I, U phi I theta I of this nu, this is equal to U phi I, but theta I nu, what's theta I nu? It's equal to nu I by above diagram, okay, it's nu I. But phi I nu I is same as phi j nu j, joule square आपके पास है, phi I nu I is same as phi j nu j. आप न्यू जे का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए, जैसे ये आई के लिए ट्रायंगल कम्यूट हो रहा है, ये जे के लिए भी कम्यूट होगा ये ट्रायंगल, तो वहाँ पर जो न्यू जे का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा फाई जे न्यू, दिस इज यू फाई जे, देन व्हाट्स दिस न्यू जे आ जाएगा बराबर थीटा जे न्यू, ओके, थीटा जे न्यू. So the image of this element and this one, the image is same under nu. So that means the pair belongs to new composition, new inverse. That's the definition of the kernel, new composition, new inverse. So which gives that the pair nu phi I theta I and nu phi j theta j, this belongs to new composition, new inverse. U phi I theta I and U phi j theta j, this pair, it is in that kernel. So but this pair, it always sits inside R. It's the definition of R. That means R is subset of
new composition, new universe, which implies the row which is the congruent generated by R sharp, it's also subset of, because the new composition, new universe, it's a congruence. So this congruence, it contains R, but R sharp is the smallest congruence containing R, so that means rho is subset of new composition, new universe. आपके पास दो कॉन्ग्रुएंसेस है, रो एंड गामा कंपोजिशन और न्यू कंपोजिशन, न्यू यूनिवर्स. यू कैन अप्लाई दिस थ्योरम जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था. बाय थ्योरम ऑफ 1 पॉइंट में यहाँ पर इसका नंबर मेंशन कर देता हूँ. बाय थ्योरम 1.5.3 it follows that वहाँ पर जो मॉर्फिज्म्स में आपने एक थ्योरम की थी, वहाँ पर आपने रो और सिग्मा लिया था, रो सबसेट ऑफ सिग्मा. इट फॉलोज दैट द मॉर्फिज्म, इट फॉलोज दैट द मॉर्फिज्म, ये जो मॉर्फिज्म होगी या डायरेक्ट मॉर्फिज्म है ये गामा फ्रॉम एफ टू के, तो इनके दरमियान वो जो मतलब इट्स फैक्टर्ड थ्रू सर्टेन मॉर्फिज्म, फैक्टर्स थ्रू मतलब एक ट्राइंगल होगा, इनके दरमियान एक सेमी ग्रुप है, फिर आपके पास दो मैपिंग्स हो जाएगी, उनका जो कंपोजिशन होगा वो गामा के बराबर. वही मतलब है कि दिस मॉर्फिज्म फैक्टर्स थ्रू पी, और वो सेमी ग्रुप क्या होगा, वो पी होगा, थ्रू पी. व्हाट्स पी? पी इज हियर एफ और रो. सो दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज there exists a unique morphism, एक मॉर्फिज्म एग्जिस्ट होगी. अब क्योंकि बीच में अब एफ होगा, एफ से लेकर क्यू तक एफ नहीं है, पी होगा, फैक्टर थ्रू पी से लेकर क्यू मॉर्फिज्म एग्जिस्ट होगी, पी से लेकर क्यू तक. सो फैक्टर थ्रू पी, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मॉर्फिज्म डेल्टा फ्रॉम P, which is F or rho, to Q, such that the diagram is this. पहले आपके पास F से लेकर P तक मैप है, ठीक है. Not you have map from F to Q है आपके पास मैप. आप कह रहे इस मैप को हम फैक्टर कर सकते हैं. दिस इज द गामा मैप. इसको हम फैक्टर कर सकते थ्रू पी का मतलब क्या है, सो पी से लेकर क्यू तक डेल्टा एक्स टू होगी. एफ से लेकर पी तक तो है ही आपके पास, दैट्स रो नेचुरल, बिकॉज इट्स एफ टू एफ और रो. ओके, सो दिस डायग्राम कम्यूट्स. तो जो आपको चाहिए थे ना मैप डेल्टा फ्रॉम पी टू क्यू, वो मिल गई है, वो मैप मिल गई. और सिर्फ अब आपको चेक करना है कि वो ट्रायंगल जो है ना, दैट ट्रायंगल शुड कम्यूट. now we have this mu I delta किसके बराबर है, mu I delta. दिस इज इक्वल टू डेल्टा का अपना वैल्यू आप दीजिए, जो म्यू आई का वैल्यू, सॉरी नॉट डेल्टा, म्यू आई जो है दैट्स अ कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग्स एक्चुअली. इट्स थीटा आई रो नेचुरल, जो आपने पहले डिफाइन किया था, म्यू आई थीटा आई रो नेचुरल दैट डेल्टा. अब ये जो आपने अभी जो ट्रायंगल आपने लिखा है रो नेचुरल डेल्टा, व्हाट्स दिस रो नेचुरल डेल्टा, इट्स गामा, थीटा आई गामा. तो थीटा आई गामा किसके बराबर है, दिस वन थीटा आई गामा, इट्स गामा आई, क्योंकि गामा आई की प्रॉपर्टी है फॉर ऑल आई इन आई. सो फाइनली देखिए आपको डेल्टा मिल गया ना, डेल्टा आपको मिल गया पी से क्यू, तो आपको एक्चुअली ये सारी चीज़ें आपको मिल गई है. अगर मैं इसको फिर से दिखा दूंगा, यू टू एस आई फाई आई है पहले मैप, सॉरी इट्स फाई आई, मैं फिर से इसको थीटा आई लिख रहा हूँ. थीटा आई दे आर नेचुरल मैपिंग्स, और फाई आई जो है दे आर द मैपिंग्स ऑफ एमएलगम. ओके,
दिस इज एस टी थीटा टी। तो सबसे पहले आपको मिली ये मैप जो आपने अभी डिफाइन किया म्यू आई के, म्यू आई फ्रॉम एस आई टू पी। और फिर आपने कहा कि अगर कोई न्यू आई होगी और न्यू जे होगी एस आई से लेकर, और गामा आई कैन से गामा आई गामा जे फ्रॉम एस आई टू क्यू, क्यू सेमी ग्रुप होगा। देन डियर स्टूडेंट्स डेल्टा, डेल्टा तो अभी आपको मिल गया, डेल्टा फ्रॉम पी टू क्यू सच दैट दिस ट्राइंगल कोम्यूटेट्स, वही आपने प्रूव किया। म्यू आई डेल्टा इज इक्वल टू थीटा आई न्यू। आपको 1 सेकेंड, म्यू आई डेल्टा है ना, यही देखिए म्यू आई ये है म्यू आई, ये है डेल्टा, म्यू आई डेल्टा वो आपने प्रूव किया, वो न्यू आई की बात। So that completes the proof of this theorem. That completes the proof. Okay. तो आपने ये देखा कि P जो है ना फ्री प्रोडक्ट, amalgamated free product, it's actually the push out of the diagram. तो नेक्स्ट थ्योरम में आप देखोगे कि ये जो एक्चुअली पुश आउट है, इट्स एक्चुअली अगर कोई सेमी ग्रुप एमलगम होगा, अगर वो एम्बेड होगा किसी सेमी ग्रुप में, वो फिर एम्बेड होगा इसी पुश आउट में, P में ही वो एम्बेड होगा। तो दैट्स द नेक्स्ट रिजल्ट एक्चुअली। और P में एम्बेड होने के लिए आपको सारी चीज़ें वेरीफाई नहीं करनी है। P में एम्बेड होने के लिए आपको सारी चीज़ें वेरीफाई नहीं करनी है। अगर आपको प्रूव करना होगा कि कोई चीज़, कोई एमलगम P में एम्बेड हो रहा है, उसके लिए आपको सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी वेरीफाई नहीं करनी है। तो वो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज लिखूँगा, कल हम वो थ्योरम करेंगे फिर इसकी। So show that a semigroup amalgam, embeds in its free product, जो इसका फ्री प्रोडक्ट अभी हमने P डिफाइन किया, in its free product if each mu I is 1 if first property, each mu I is 1 second property, Si mu I intersection Sj म्यू जे एक्चुअली इक्वल होना चाहिए। आप सिर्फ ये कंटेन नोट कीजिए, द सबसेट ऑफ यू। ओके, तो ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है। अगर सेमी ग्रुप एमलगम एम्बेड होगा फ्री प्रोडक्ट में, if each mu I is 1 and SI mu I intersection Sj mu j is equal to u mu। तो एम्बेड होने के लिए क्या होना चाहिए? एम्बेड अगर आपके पास सेमी ग्रुप एमलगम है तो ये तो आपके पास है ही, फिर है ना, ये चीज़ें आपके पास है। तो एम्बेड होगा ये सपोज T में। अब यहाँ पर हमें P में प्रूव करना है, P में आपको प्रूव करना है, ये P में एम्बेड हो रहा है। तो इसमें एम्बेड होने के लिए क्या होना चाहिए? इट एम्बेड्स इन P मीन्स दैट देयर शुड एक्सिस्ट मॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म फ्रॉम Si to P। जो आपने अभी म्यू आई डिफाइन किया वो तो मॉर्फिज्म है ही, मगर ये मॉर्फिज्म क्या होनी चाहिए? मोनोमॉर्फिज्म। तो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ये है कि म्यू आई अगर 1 होगी, म्यू आई इज ऑब्वियसली मॉर्फिज्म, अगर ये 1 भी होगी देन इट्स अ मोनोमॉर्फिज्म। तो मोनोमॉर्फिज्म आपको मिल गई।
क्योंकि 1 1 आप कह रहे कि इफ इट इज 1 1 मॉर्फिज्म है ही है, तो ये मोनोमॉर्फिज्म है। सेकंड, आपको लैम्डा मिलना चाहिए। ओके, यू शुड हैव अ लैम्डा। यहाँ पर मैं वो म्यू से डिनोट करूँगा, जहाँ तक लैम्डा से डिनोट करते, बट इन पर्टिकुलर अगर मैं फ्री प्रोडक्ट को प्रूव करूँगा, इसी में एम एड हो रहा है, तो वहाँ पर मैं म्यू से इसको डिनोट करूँगा। तो म्यू में क्या डिफाइन करूँ मैं, आई विल जस्ट टेक द कंपोजिशन। ओके, मैं फाई आई और म्यू आई का कंपोजिशन ही म्यू लूँगा, तो ओबियसली आपको म्यू मिल गया। म्यू फ्रॉम यू टू पी सच दैट दिस ट्रायंगल कम्यूट्स। अब सिर्फ आपको ये चीज़ वेरीफाई करनी है, क्योंकि एमेडेबिलिटी की ये तो फर्स्ट कंडीशन है कि आपका ये जो है ना, ये स्क्वायर डायग्राम ये कम्यूट होना चाहिए। वो ओबियसली कम्यूट हो ही रहा है, ये आपने अभी प्रूव किया। फाई आई म्यू आई इज सेम एज फाई जे म्यू जी, जो आपने अभी ये डिफाइन किया ना, आपने म्यू आई डिफाइन ऐसे किया कि फाई आई म्यू आई इज सेम एज फाई जे म्यू जी, तो स्क्वायर कम्यूट हो रहा है। और ट्राइंगल भी कम्यूट हो रहा है, वो तो डेफिनेशन से ही कम्यूट है, क्योंकि म्यू को आपने ऐसे डिफाइन किया, म्यू को आपने डिफाइन ही किया फाई आई म्यू आई, तो ट्राइंगल खुद ही कम्यूट हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है, अगर आप कहोगे कि ये पी में एम्बेड हो रहा है, तो वो तो आपको मिल गया फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ओके, सेकंड रिक्वायरमेंट ये है, सेकंड रिक्वायरमेंट आपके पास ये है एस आई म्यू आई। अगर आप देखो एस आई लैम्डा एक्चुअली है डेफिनेशन में, बट यहाँ पर वो म्यू आई मैप है। दिस इंटरसेक्शन दिस शुड बी इक्वल टू यू लैम्डा यू म्यू यहाँ पर है, और ये आपको कह रहा है कि अगर ये सबसेट होगा इसका, देन इट्स इक्वल टू, मतलब रिवर्स इंक्लूजन ऑलवेज ट्रू है। सो सॉल्यूशन इसका, so since these mu i's they are the mappings from Si to P, डिफाइंड बाय, इनको हमने ऐसे डिफाइन किया था, डिफाइंड बाय म्यू आई इज इक्वल टू थीटा आई रो नेचुरल, इनको हमने ऐसे डिफाइन किया। एंड इन द अबोव थ्योरम in the above theorem we have seen that this phi I mu I is equal to phi j mu j for all I j. So that means this composition is actually independent of the index. Okay, ये independent है index, they are all equal. So let's denote this composition by mu now. Okay, so let mu is equal to phi I, let mu is equal to phi I rho natural. Okay, not to phi I rho natural, sorry, phi I, this phi I theta is phi I mu I. Okay, phi. So then we have a following commutative diagram. Then we have the following commutative diagram. We have following commutative diagram. ये डायग्राम आपको मिल रही है एस आई एस जी, this is P, this is mu I, and this one is mu J, and this is mu, the composition. Okay, this one is phi I, this one is phi J. ये कम्यूटेटिव डायग्राम आपके पास है। तो म्यू भी आपको मिला है ना, एमेडेबिलिटी के लिए आपके पास म्यू होना चाहिए, मोनोमॉर्फिज्म। Now if this mu I is 1 1, if mu I is 1 1, अगर ये mu I 1 1 है, ठीक है, mu I अगर 1, phi I तो है ही 1 1, इट्स अ मोनोमॉर्फिज्म। अगर mu I भी 1 1 है, इनका कंपोजिशन जो है दैट्स mu, वो भी मोनोमॉर्फिज्म ही है। So since this mu I is 1 1, if mu I is 1 1, then जो आपने mu डिफाइन किया, which is the composition of phi I mu I, is a monomorphism, is a
ये मोनोमॉर्फिज्म है। तो ये मोनोमॉर्फिज्म भी आपको मिल गई। देन दिस इज अ मोनोमॉर्फिज्म एंड म्यू आई इज ऑल्सो ए मोनोमॉर्फिज्म। म्यू आई इज, ये दोनों मोनोमॉर्फिज्म्स है। तो आपको ऐसी मोनोमॉर्फिज्म मिल रही है जिससे ये डायग्राम कम्यूट हो रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको मिल गई इस एम्बेडेबिलिटी के लिए। सो आप इफ मत लिखिए, इट इज गिवन ओके। ये वहाँ से अगर इफ है तो सपोज आप लिखिए, सपोज नॉइज होना। नाउ सपोज नेक्स्ट suppose that you suppose that this one si mu I intersection sj mu j is subset of u mu. We show that they are equal. Si mu I intersection sj म्यू जे इज इक्वल टू यू म्यू। आपको सिर्फ रिवर्स इंक्लूजन चाहिए, आपके पास गिवन है, आपको रिवर्स इंक्लूजन चाहिए, वो आप देख लीजिए। इसने किया है इसका प्रूफ, दैट्स वेरी सिंपल। इसने किया है कि नहीं किया है? इसने इसका प्रूफ इसने नहीं किया है। तो आपको रिवर्स इंक्लूजन चाहिए, आप यू म्यू से कोई एलिमेंट लीजिए, आपको प्रूव करना वो ऐसा म्यू आई में भी है और एस जे म्यू, मतलब वो हर किसी ऐसा म्यू आई में है। अगर वो हर किसी ऐसा म्यू आई में है तो वो ऐसा म्यू जे में भी होगा। सो दैट लाइज इन द इंटरसेक्शन। तो वहाँ से आपको इसका रिवर्स इंक्लूजन आ जाएगा। इसको आप चेक कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। Let's end this lecture here, okay? Now you can end this meeting.